Okay, so what I have done is, right, I have created a new project. I have called it Array Basics. Inside that, I have created a package app, and inside it, I have created a class app, right? Now, in the app class, right, I have created the main function. And what we are going to do or trying to do in this is that we would be creating an array, right, and we'll be say performing certain operations using an array, simple integer array leke we would be doing such things, right. Now let us create an integer array first, right. So how will I do that? I'll say int arr equals to new int, and I'll say of 5. What it means is that I am having an array which is of size 5, right. This is what it means, and it will store integers. So it will be able to store 5 integers in that array. Next, what I am going to do is I'll start assigning values in my array. So how will I do that? I'll say arr of 0 equals to say 10, then arr of 1 equals to say 20, arr of 2 equals to 15, arr of 3 equals to say 30, and arr of 4 equals to say 25, right. And I will save this. Now because this array is of size 5, right, it will be addressed using the indexes from 0 up to 4, right. The indexes would be from 0 till 4, right. So 0, arr of 0 is your first element, arr of 1 second element, and arr of 4 is your fifth element, right. Now if you have to print some element of an array, how will you do that? I will simply say system.out.println, and I will say arr of say 4. So what it will do is it should ideally print me 25, this value. Let us check, right. So if I run this, it should print me 25, right. So it is as simple as that, right. So what happens in an array is that this array is a very simple data structure, right, in which it is a very simple data structure in which what we do is we simply have elements which are stored in contiguous memory locations, राइट. यही चीज़ आप 5 अलग अलग वेरिएबल बना के भी कर सकते हो, इंट ए, इंट बी, इंट सी, इंट डी, इंट ई, राइट. और उनको इंडिविजुअली उनके वैल्यू जो है आप चेंज करोगे. क्या होगा? हर ए के लिए अलग एक मेमोरी लोकेशन होगी, बी के लिए अलग होगी, सी के लिए अलग होगी, ऐसा होगा, राइट. एरे के केस में क्या होगा? मेमोरी लोकेशन तो हर इंटीजर की, यानी पाँचों इंटीजर के लिए मेमोरी लोकेशन होगी, यानी वन इंटीजर विल टेक 5 बाइट्स, 4 बाइट्स, सो 5 इंटीजर्स विल टेक 20 bytes, right. So nothing separate in that. So 5 memory locations they will be allocated. लेकिन right, what is the advantage? Advantage is that all these they are stored in contiguous memory locations. Contiguous मतलब एक के बाद एक. आपको 50 वेरिएबल नहीं लेने पड़ते, ये दूसरी चीज़. तीसरी चीज़, आप बहुत कम कोड में पूरा काम कर सकते हो, राइट. हर पर्टिकुलर इंटीजर के लिए अलग वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं. एट द एंड इफ़ यू सी या इफ़ यू लुक एट दिस, ये क्या है? दिस इज़ अ सेपरेट वेरिएबल, अगर सही तरीके से इसको देखोगे, राइट. लेकिन वेरिएबल नेम जो है यहाँ पर, वेरिएबल नेम हर जगह उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, ऐसा मान के चलो कि ARR जो भी एरे का नाम है, एंड देन वी यूज़ इंडेक्स, राइट. स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर व्हाट वी यूज़ इज वी यूज़ इंडेक्स, right. Now to iterate over an array, right, what we can do is we can say for int I equals to 0 semicolon I less than arr dot length and I plus plus. अब arr dot length क्या करता है? आपको array का साइज देता है. तो ये केस में array का साइज क्या है? 5 है. सो ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? I equals to 0 से लेके तो I equals to 4 तक. जब भी I की वैल्यू 5 हो जाएगी, दिस विल कम आउट ऑफ दिस लूप. एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली से system dot out dot println एंड आई विल प्रिंट ARR ऑफ I, राइट. ये ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ. तो यहाँ क्या हो रहा है? आई एम सेइंग system dot out dot println ARR ऑफ I. तो फर्स्ट
ARR of 0 would be printed, then ARR of 1, then ARR of 2 up till ARR of 4. That would be done. Right, let us run this and it will print all the elements of our array. Right, again it is very simple, no rocket science. राइट यही चीज़ को अगर आपको वाइल लूप से करना है, यू कैन से i इक्वल्स टू 0, आपने वापस i को 0 कर दिया, देन यू विल से वाइल i इज लेस देन ARR डॉट लेंथ. ये क्यों रो रहा है? ओके, बिकॉज ये इंट i जो है ऊपर डिक्लेयर करना है, तो आई विल से इंट i एंड आई विल रिमूव this from me. Now this should work, right? फिर मैंने वापस i को 0 किया. I am saying while this thing I is less than ARR of length, I'll paste this, right? Now can you tell me what would be printed? Yeah, can you guys tell me what would be printed ये statement की वजह से? Full array, only first element. How many times would first element be printed? It will be printed infinite times. Why infinite times? Because ये i plus plus हम लोग कर ही नहीं रहे, तो this condition would never be false, right? So what I should always remember is doing this increment operation so that वो इन्फाइनाइट लूप में नहीं जाएगा. नाउ इफ आई प्रिंट इट अगेन, तो ये अरे दोबारा ये प्रिंट हुआ, ये आपके वाइल के अंदर के प्रिंटलन स्टेटमेंट से प्रिंट हुआ है, राइट? सो जनरली आप जब भी कोई कंपनी के ये देते हो, टेस्ट वेस्ट देते हो, तो उसमें ऐसे सारे क्वेश्चंस होते हैं, राइट? नाउ इफ आई हैव टू प्रिंट द एरे, मैं इनको वापस कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ. If I have to print the array in reverse order, how can I do that? I'll say while I को मैंने 0 लिया है, तो मैं अब I को instead of 0 I'll take I as 4, right? So I'll say while, ये हटा ही देता हूँ, ऊपर त्रास देगा. Okay, so I'll say while I is greater than equals to 0, and I'll say system.out.println ARR of I, and I'll say I minus minus. What is this going to do? I की वैल्यू इनिशियली 4 है, 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ट्रू, तो ये ARR ऑफ 4 पहले प्रिंट करेगा, फिर I की वैल्यू 3 होगी, तो ARR ऑफ 3, फिर ARR ऑफ 2, ARR ऑफ 1 एंड ARR ऑफ 0 तक. 0 के बाद में दिस वुड बिकम -1, ये बाहर आ जाएगा, राइट? ये भी हटा देता हूँ अभी के लिए, राइट? एंड इफ आई रन दिस शुड वर्क, राइट? अब इसने एरे को उल्टा प्रिंट किया, राइट? सो फिफ्थ एलिमेंट पहले और फर्स्ट एलिमेंट सबसे आखिरी में, राइट? दैट इज व्हाट इट हैज डन, राइट? यहाँ तक सिंपल है, नो रॉकेट साइंस. ये समझ गए? टाइप कर शाश्वत, बात मत कर. यस सर. ओके, ग्रेट. राइट, नाउ let us say that if I have to print only the even elements of an array, only the even elements, तो इसमें से even elements कौन से हैं? ये 0th एलिमेंट इवन है, फर्स्ट इवन है एंड थर्ड इवेंट है इवन है, तो 10, 20 और 30 यही प्रिंट होना चाहिए, राइट? तो वो मैं कैसे करूँगा? व्हाट आई विल डू इज आई विल से इफ ARR ऑफ I मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, राइट? इन दैट केस एरे के एलिमेंट को प्रिंट करो. मतलब क्या कि अगर 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर 0 आता है तो यू शुड प्रिंट, ओनली देन यू शुड प्रिंट. लेट अस चेक, राइट? तो इसने क्या किया? सिर्फ इवन एलिमेंट्स को प्रिंट किया,
राइट. सो अगेन दैट इज प्रिटी मच सिंपल. ऑड करना है तो यहाँ नॉट इक्वल्स टू 0 दे दो तो भी चल जाएगा. Right, so that is the task of printing even elements of an array. Now let us say that if you have to print sum of all the elements of an array. Sum of all the elements मतलब क्या, ये 10 plus 20 plus 15 plus 30 plus 25, ये अगर आपको प्रिंट करने हैं, आप कैसे करोगे? राइट, आई विल से int sum equals to 0. मैंने एक वेरिएबल ले लिया sum नाम से. राइट, देन आई विल से while, ये i इक्वल्स टू 0 कर देता हूँ मैं इधर, ये उड़ा देता हूँ, ये नहीं, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. राइट, देन आई विल से while i is less than arr dot length. Now next is, what will I do? I will say sum equals to sum plus arr of I, and then I will do I प्लस प्लस, क्योंकि आई 0 से लेके आगे तक ले जा रहे हैं हम लोग, इसलिए आई प्लस प्लस. एंड इसके बाद आफ्टर माई वाइल कंप्लीट्स आई विल से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटन, आई विल से सम ऑफ एरे इज, एंड आई विल से प्लस सम. नाउ लेट्स सी, इट सेज सम ऑफ एरे इज 100, 30, 30, 60, 60 plus 40, ठीक है. Right, so what did it do? It printed you sum of all the elements of an array. If I need sum of only the even elements, या in this case let's say only the odd elements, तो कितना आना चाहिए? 15 plus 25 यानी 40. So I will say if arr of I modulus 2 not equals to 0, तो ही sum करो. तो ये केस में ये क्या करेगा? ये सिर्फ ऑड एलिमेंट्स का सम करेगा, एंड वो सम को हम लोग नीचे में प्रिंट करा देंगे. राइट, सो सम ऑफ एरे इज 40, 25 प्लस 15, ये 15 प्लस 25. राइट, सो व्हाट इट मीन्स इज कि एरे पे जब भी कोई ऑपरेशन करना है, राइट, वॉट एवर यू नीड टू डू, जनरली आपको क्या लगता है? आपको एक लूप लगाना पड़ता है. राइट, लूप किस लिए लगाना पड़ता है? टू एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स इन एन एरे. राइट, वॉट यू नीड इज, यू नीड एक लूप यू विल हैव टू पुट इन. इज इट क्लियर? एंड वो लूप के अंदर में फिर आपको जैसा चाहिए वैसा लॉजिक जो है वो आप अप्लाई करोगे. Okay, great. Right, now again I'll remove this. ठीक है. Now अगर मुझे okay, now what we should do is, let us say write a function, right, which will find you sum of all the elements of an array. तो मैं क्या करूँगा? आई विल से पब्लिक स्टैटिक, राइट, इंट सम, एंड आई विल पास द एरे इंट arr. क्यों रोया भाई? रिटर्न स्टेटमेंट नहीं. ओके, इन दिस आई विल से इंट s इक्वल्स टू 0, राइट. देन आई विल से फॉर इंट I इक्वल्स टू 0, I less than arr dot length I plus plus, and inside this I would simply say s equals to s plus arr of I, and I will say return s. तो ये क्या करेगा? एरे के एलिमेंट्स पे इटरेट करेगा, राइट, और वो s में ऐड करता जाएगा, एंड यू विल रिटर्न दैट s. राइट, अब what I have done is कि I have created a function which will accept an integer array, ये integer array, right, and it will print sum of elements of those of that array. That is what it would do, right. अब ये function अगर मुझे यहाँ use करना है तो how will I do that? Static है तो मैं directly name से access कर सकता हूँ. So I will simply say sum of, and I will pass my array which is arr.
राइट लेकिन इसको हमें कोई तो वेरिएबल में लेना पड़ेगा, तो एल से इंट s1 इक्वल्स टू सम ऑफ ARR। तो क्या होगा, यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हो रही है यानी s मतलब वो सम, दैट विल कम इनटू s1 एंड आई वुड सिंपली से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन sum is and I'll say plus s1, right? So it said sum is 100, right? So this is how you pass the array as a parameter in a function. मैंने क्या किया है, मैंने एक array यहाँ बनाया, right? फिर मैंने एक function बनाया which will accept any integer array. ये जैसा आपका array है वैसा आपके बहुत सारे array हो सकते हैं, अलग अलग array हो सकते हैं। कोई भी array है उसको अगर आप ये sum में पास कर दोगे still it would work, right? Nothing would change. And this particular function will return me some of the elements of that array, right? Again no rocket science. Understood यहाँ तक कि how to pass an array to a function? Okay, now assuming that you understood this, I'll give you a few assignments for you to become well versed with this array concept, because ये array बहुत important है, हर चीज़ में यूज़ होता है, right? तो mostly this week our focus would be कि जो ये एग्ज़ाम्स में ये कोड वगैरह आते हैं ना, आउटपुट दिखाओ या कोई लूप में एरर ढूंढो, राइट? इसके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं, राइट? हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स तो समझ लिए, राइट? अब थोड़ा प्रोग्रामिंग लॉजिक के ऊपर भी फोकस करते हैं, ठीक है? तुम लोग किसी किसी का वो कैपजेमिनी भी है ना नेक्स्ट मंथ में, उसके लिए ये बहुत काम में आएगा, बहुत ज़्यादा। शाश्वत टाइप कर जुलाई को परसिस्टेंट आ रही है, ओके। और परसिस्टेंट शायद एमकैट के थ्रू लेने वाली है, कैसे लेने वाली है एग्ज़ाम? उनके सॉफ्टवेयर से, एप्टी नहीं है। मुझे एक बार ये चेक करने दो परसिस्टेंट वालों से कि अभी का उनका करंट ये क्या होता है। सिर्फ DBMS, आर यू श्योर? आई डाउट सिर्फ DBMS के भरोसे परसिस्टेंट लेगी। डा यानी एल्गोरिदम्स, एनीवेज मैं आज वो चेक करता हूँ कि उनके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। लेट मी चेक दैट टुडे, राइट? लेट्स सी व्हाट कैन बी डन, है ना? बट इन माय ओपिनियन परसिस्टेंट को ऑपरेटिंग सिस्टम भी लगता है, परसिस्टेंट को नेटवर्किंग का भी थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए, राइट? स्पेशली वो ISO OSI मॉडल वो चाहिए। DBMS बहुत थोड़ा बहुत पूछेंगे, राइट? फिर C++ के ये बेसिक कॉन्सेप्ट पूछेंगे, नहीं यही प्रोग्रामिंग लॉजिक के कॉन्सेप्ट जो है वो पूछेंगे, राइट? तो उसके ऊपर फोकस करो तुम पढ़ाई में। हाँ, तो उनकी टेस्ट इतनी इजी नहीं रहती, उनकी टेस्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती है। एप्टी भी शाश्वत उसमें होता है, सिर्फ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस काफ़ी कम रहते हैं, 4-5 ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। यानी पुराना जो पैटर्न था परसिस्टेंट का, मुझे जो पैटर्न पता है, राइट, इट यूज टू हैव 60 ऑड क्वेश्चंस, जिसमें से एप्टी के हार्डली 4 या 5 रहते थे, नॉट मोर देन दैट। तो ये एक साइट है इंडिया बिक्स नाम की, indiabix.com शायद,
टाइम लिमिट शायद 60 मिनट्स ही रहते हैं, MCQs रहते हैं क्योंकि। तो इंडिया बिक्स में से ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस देखो, इंडिया बिक्स में से नेटवर्किंग के क्वेश्चंस देखो, DBMS के देखो, राइट, उसके थ्रू हेल्प मिल जाएगी। एंड जितने ये सब्जेक्ट्स के MCQs तुम ढूंढ सकते हो, कर सकते हो, उतने करो, जितने ज़्यादा, राइट, उसके ऊपर फोकस रखना। Okay, write a function that prints all elements of array using for loop. Right, same thing, another function using while loop. Right, then third is average of all elements of an array. Right, ये तीसरा फंक्शन, राइट। सो दीज आर ऑल फंक्शंस जो आपने लिखना है। राइट, देन फोर्थ विल बी returns sum of multiples of 3 in an array. Right, so these are the 4 programs that you have to attempt today. ये 4 चीज़ें आपने attempt करनी है। Right, I hope you'll be able to do that. This is no rocket science, काफ़ी easy है। क्लास 10 बजे से ले सकते क्या? इफ़ अदर्स इट इज़ फाइन, आई एम फाइन। 10 बजे इज़ ऑल्सो ओके विथ मी। नो, नहीं शाश्वत, फिर नहीं ले सकते। हाँ, तो फिर 2-3 लोग, काफ़ी लोग नहीं वाले हैं तो नहीं ले सकते 10 बजे, राइट, 11 बजे लेंगे। नहीं, शाम को नहीं जमता शाश्वत। लेट दिस बी द टाइमिंग, ठीक है। सो अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस टुडे।